السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم منتخب حدیث سے درس حدیث پیش کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر درس نمبر 15 ہے. ہم جو حدیث پیش کر رہے ہیں وہ حدیث نمبر 13 ہے ایمانیات پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن المقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل اما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من اهلها ويذلهم فيدينون لها. رواه احمد. سیدی سے مسند احمد کی روایت ہے. اس کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس دھرتی پر کوئی گھر چاہے کچا ہو یا پکا ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں اسلام داخل نہ ہو. اسلام ہر حال میں داخل ہوگا. کچھ لوگوں کو عزت کے ساتھ داخل ہوگا، یعنی اسلام عزت کے ساتھ قبول کریں گے، اور کچھ لوگ ذلیل ہو کر کے اسلام قبول کریں گے، لیکن اسلام ضرور داخل ہوگا ان کے گھر میں. جو آدمی عزت کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشے گا، اور جو ذلت کے ساتھ داخل ہوگا وہ ان کے ماتحت بن کے رہے گا. اس میں ایک بات بہت بنیادی بات ہے، وہ پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں جانے کے لیے پوری دنیا کے لیے ایک شرط ہے. غور سے سنیں گے تو میں بات سمجھا پاؤں گا. پوری دنیا کو جنت میں جانے کے لیے ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے. کوئی نیکی کسی کو جنت میں داخل نہیں کر پائے گی بغیر ایمان کے. جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا کتنی بھی نیکیاں کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ اس کی نیکی کا بدلہ کسی بھی انداز سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کو عطا کر دے گا، لیکن آخرت میں اس کو جنت میں لے جانے کے لیے ایمان شرط اول ہے. اب دیکھیے، اللہ رب العزت نے جب ایمان کی شرط لگائی ہے تو سب کو ایمان کی دولت اس کو دینا ہے. سب کو، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں سب کو ایمان کی دولت اس کو دینا ہے. کیونکہ اگر وہ ایمان کی دولت نہیں عطا کرے گا، اس کی نہیں سمجھ میں آئے گی کہ ایمان اسلام سچا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دے. تو بات اپنی سمجھا پا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جب یہ طے کر دیا ہے کہ ایمان اسلام جب تک آپ نہیں قبول کریں گے تب تک آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اب اسلام کا سمجھنا، کہ اسلام سمجھیں، یہ لازم ہے کہ پروردگار عالم اپنی جانب سے یہ کام کرے، اس کے بعد اس کو آزاد کر دے کہ آپ چاہے قبول کریں چاہے نہیں قبول کریں. اب اس کے طریقے دیکھیے کیسے کیسے وہ اللہ رب العزت اپنے اسلام، اپنے دین کو بندوں تک پہنچاتا ہے. ایک ذریعہ دعوت ہے کہ آپ کے دل میں دعوت کا کام لگا دیا ہے کہ آپ دعوت دے کر کے پوری دنیا والوں کو اسلام کے بارے میں بتا دیں، تاکہ قیامت میں آپ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، جو آپ نے کنڈیشن رکھی ہے وہ کنڈیشن ہم کو معلوم ہی نہیں وہ اسلام کیا ہے. تو ایک ذریعہ دعوت ہے. اسی لیے یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں دعوت مسلمانوں میں کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، یہ ایک الگ بیٹر ہے. لیکن کوئی مسلمان کو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ دعوت کا کام صرف مسلمان کے لیے ہے. کیوں؟ قرآن مجید کی جس آیت سے دعوت کو فرض قرار دیا جاتا ہے،
जिस आयत से दावत को जरूरी करार दिया जाता है उसमें मुसलमान का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया है। वो आयत क्या है? कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिल मुस्लिमीन नहीं कहा अल्लाह ने, लिल मोमिनीन नहीं कहा अल्लाह ने, उखरिजत लिन्नास, तुमको लोगों के लिए पैदा किया जा रहा है कि तुमको दावत का काम लोगों के लिए करना है। क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन रखी है रब्बे दुल जलाल ने कि जब तक आपके पास इस्लाम नहीं पहुंचेगा आप जहन्नम में नहीं जा सकते हैं। तो एक जरिया क्या है कि ये हमारी जिम्मेदारी डाली गई कि भैया इनको पहुंचा दो, ताकि ये कयामत में न कह सके कि अल्लाह आपने कंडीशन इस्लाम की रखी और हमको इस्लाम बताने वाला कोई नहीं था। तो एक जरिया क्या बना? दावत बना कि दावत के जरिए लोगों तक दीन पहुंचना चाहिए। ठीक है, इसीलिए कुरान में दूसरी जगह उसने कहा कि सूरह बकरा में उसने कहा कि तुम सब साक्षी हो। क्या हो? साक्षी जानते? गवाह हैं। किस चीज की गवाही देनी है? जब अल्लाह बोलेगा सीताराम को कि सीताराम तुम जहन्नम में जाओ, क्यों जाओ जहन्नम में? तुमने इस्लाम को नहीं कबूल किया। वो बोलेगा अल्लाह इस्लाम किसके पास था? किसके पास इस्लाम था? बोलेगा तुम्हारे बाजू में आदमी जो रहता था, तुम्हारी कुर्सी के बगल में जो बैठता था, तुम्हारा जो क्लासमेट था, उसका नाम अहमद था ना? कहाँ? वो अहमद ने आपको इस्लाम के बारे में बताया कि नहीं बताया? अब अहमद को बुला करके कहा जाएगा तुम साक्षी बनो कि मैंने इस सीताराम को इस्लाम की बात कही है। क्यों? कुरान की क्या आयत है? कुरान की आयत है कि उम्मतन वसतल लितकूनू शुहदा अलन्नास, कि तुम दरमियानी उम्मत हो, तुमको साक्षी बनाकर ही भेजा जा रहा है। तुमको अल्लाह ने शुहदा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, शुहदा अलन्नास, लोगों पर तुमको साक्षी बनना है। लिहाजा ये बात अपने जहन से एकदम निकाल दें। अल्लाह ने जब उसके ऊपर लाजिम किया है कि बगैर इस्लाम के दाखिल नहीं हो सकते हैं, तो इंतजाम इस्लाम का किसको कर रहा है? अल्लाह। जरिया अलग अलग बनाएगा। तो एक जरिया उसने क्या बनाया है? दावत। दावत कैसे? ये जरूरी नहीं है कि आप उसको पहुंचकर बोले तभी आप साक्षी बने। आप बाजू में रहते हैं उसके, आप हो सकता है कि आप डायरेक्ट जाकर ना बोले हों कि भैया ये दीन जो तुम अमल कर रहे हो इसमें ये फॉल्ट है, ये दीन बहुत अच्छा है, हो सकता है आपने ना हो, लेकिन आप ऐसे रहें वहां पर कि आपके अमल से इस्लाम खुद बखुद छलके और वो जान जाए कि हमारे मजहब में और इनके मजहब में बड़ी बुनियादी फर्क है। जब वो आपके अमल से जान जाएगा, अगर ताजिर है तो पता चला कि वो कहता है कि साहब ये मुसलमान लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते, अगर सौदा खराब है तो बता देंगे, अगर ठेका लेंगे तो ये बता देंगे कि मैंने अगर कहा है कि लकड़ी सागवान के इस्तेमाल करेंगे तो सागवान इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों का इनके धर्म में ये सिखलाया जाता है। जब उसको बात जैसे ही आई कि इनके धर्म में सिखलाया जाता है, आपने तबलीग का पहला दरिया कर दिया। बोले कुछ नहीं उसको, ये खामोश तबलीग है। क्या होती है? खामोश तबलीग है। ये सबसे ज्यादा अपने असरात किसी गैर पर डाल देती है। तो एक जरिया दावत का ये होता है। दूसरा जरिया होता है कि हम घर घर जाएं, जितनी आपकी ताकत है, जितनी आपकी सलाहियत है, जितनी आपकी दुनिया है। कितनी बातें कहा? 3 बातें बोला। आपकी सलाहियत है जितनी योग्यता है, एबिलिटी है, उतनी अल्लाह आपसे मुतालबा कर रहा है। किसके पास जाना है? जिनसे आपके अलैक सलैक है, मिलना जुलना है। तो जिनको आप जानते हैं, जो आपकी दुनिया है और जो आपकी सलाहियत है, ये दूसरा तरीका है कि आप उसको दीन पहुंचा दें। नंबर 3 है कि हम बहुत जानते हैं तो आपकी दुनिया ज्यादा हो जाएगी, आप उन तक पहुंचाए। बहरहाल एक जरिया अल्लाह ने उसके दिल में इस्लाम का दावत रखा है। नंबर 1। नंबर 2, एक जरिया ताकत रखा है। क्या रखा है?
ताकत रखा है कि इस्लाम का गलबा होगा। ये हदीस में जो बताया जा रहा है, इस्लाम का गलबा होगा। कुछ लोग इस्लाम को कबूल कर लेंगे खुशी खुशी। अल्लाह कह रहा है जो खुशी खुशी कबूल करेंगे, रसूल अकरम फरमा रहे हैं उन्होंने इज्जत के साथ इस्लाम को कबूल कर लिया। अगर नहीं कबूल करेंगे तो इस्लाम जब गालिब हो जाएगा तो हर हाल में उनको इस्लाम मानना पड़ेगा, भले उस पर वो मोमिन बने या ना बने। यानी इस्लाम के मातहत होकर के रहना पड़ेगा। ये दूसरी शक्ल। तो एक शक्ल हो गई दावत के जरिए इस्लाम, दूसरी शक्ल हो गई ताकत के जरिए इस्लाम। नंबर 3, तीसरा, ये दुनिया में जितनी तरक्की आप देख रहे हैं, हर आदमी तरक्की के अलग अलग वजह बयान करता है। एक मौलवी देखिए क्या बयान करता है। अगर एक ताजिर है, कहेगा बड़ा भाई साइंस ने किया मामला और हवाई जहाज कर दिया, जो 4 घंटे में काम होना था वो 1 घंटे में हो जाता है। ये उसकी थॉट है। हम एक आलिम की, एक मोमिन की शान, उसकी थॉट क्या है? ये जितनी तरक्की हो रही है, चाहे आप कम्युनिकेशन के लिहाज से, यानी बातचीत के लिहाज से कि 1 मिनट में हमारी बात पूरी दुनिया में पहुंचे, अभी तो मैं बात कर रहा हूं, इसको हम चाहें तो 5 मिनट में दुनिया के एक बड़े हिस्से में पहुंचा दे। तरक्की क्यों की गई है? ये अल्लाह तरक्की क्यों करा रहा है? तुम जिस अंदाज से भी सोच रहे हो, हम सोचते हैं कि ये तरक्की करा रहा है ताकि जो उसने इस्लाम की कंडीशन रखी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जल्दी तक पहुंच जाए, ताकि क़यामत में लोग न कह सके मैं अल्लाह आपके इस दीन को मैं समझ नहीं पाया, मैं जान ही नहीं पाया। वो चाहे तरक्की हवाई जहाज की हो, सफर की हो, कम्युनिकेशन की हो, नेट की हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो, जितनी तरक्की इस तरीके से हो रही है, आप जिस अंदाज में सोचे, मेरा सोचने का अंदाज ये है कि ये सारी तरक्की रब्बुल जलाल के दिए हुए दिमाग से हो रही है, और वो ये करा रहा है ताकि इस्लाम ज्यादा से ज्यादा अच्छे अंदाज में पहुंचाया जा सके और पहुंच जाए। तो तीसरा दरिया क्या है? तीसरा दरिया ये सब जराए हैं कि वो लोगों तक दीन को क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। देखिए, हम कबूल करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये नहीं कह सके अल्लाह मैं जानता ही नहीं था। वो जानने के उज्र को खत्म करेगा, दावत के जरिए खत्म करेगा, ताकत के जरिए खत्म करेगा, इन तमाम तरक्कियों के जरिए खत्म करेगा। अच्छा, खूब एजुकेशन बढ़ेगा, खूब तालीम बढ़ेगी, बढ़ रही है, हर दिन तालीम अपने बढ़ती जा रही है, आप सब जानते हैं। कुछ लोगों को इल्म के जरिए मालूम होगा, किताबें खुद पढ़ेंगे, निकालेंगे, नेट से पढ़ेंगे इस्लाम क्या है, अब उनको समझ में आ जाएगा कि यही दीन सच्चा। कबूल करें नहीं करें वो एक अलग मैटर है। क़यामत में ये नहीं कह पाए कि अल्लाह मैं उस दीन को जानता नहीं था। तो कुछ लोगों के इल्म के जरिए बात पहुंचेगी, कुछ लोगों को इस दुनिया की कारीगरी के जरिए बात पहुंचेगी। वो सोचेंगे कि ये हमारे लोग जो कहते हैं कि गणेश जी ने दुनिया बनाई है, या ब्रह्मा ने दुनिया बनाई है, या ये फला देवता है, फला अवतार है, कुरान मजीद ने बहुत प्यारे अंदाज में कहा है कि जिनकी आप पूजा करते हैं, कहा है कि अगर अपने ऊपर से वो मक्खी भी उड़ाना चाहे तो नहीं उड़ा सकती, तुम्हारा मसला कैसे हल करेंगे? आप बताइए, इससे प्यारी मिसाल क्या दी जा सकती है कि उसके ऊपर अगर मक्खी बैठी है तो वो उसको उड़ा करके बोल नहीं सकता, उड़ जा हट है। वो जब अपने ऊपर की मक्खी नहीं उड़ा सकता है, तुमको बेटा दे देना, तुमको धन दे देना, तुम्हारे मसाइल हल कर लेना, कितनी बेवकूफी की बात है, कैसी बातें आप करते हैं। तो इस तरीके से वो इल्म के जरिए क्या है, लोगों को समझाता है। फिर चौथी चीज, कि पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां रखी हैं। एक बद्दू ऐसे एक फलसफी ने कहा कि तुम अल्लाह को मानते हो? तो उसने कहा कि हम मानते हैं। देखा है तुमने? देखा तो नहीं। कहा यार, जो चीज तुमने देखी नहीं उसको तुम इतना विश्वास रखते हो, तुमको कुछ भी अकल नहीं है? तो बोला नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं तो एक बद्दू आदमी हूँ, मैं रेगिस्तान में रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो वो बद्दू देखो कैसा कहता है, कैसा अल्लाह उसके दिल में डाला है ईमान इस्लाम। बोलता है कि मैं तो रेगिस्तान में रहता हूँ,
यहां मैं कभी कभी देखता हूं कि ऊंट की मेंगनी पड़ी रहती है। ऊंट की मेंगनी जानते ना, जो गोबर करता है ऊंट की मेंगनी पड़ी रहती है। जब हम ऊंट की मेंगनी देखते हैं तो हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये यहां से ऊंट गुजरा जरूर है, जैसे मैंने ऊंट को देखा नहीं है। हम ऊंट की मेंगनी से किसका पता लगाते हैं? ऊंट का पता लगाते हैं। तो अगर हम मेंगनी से ऊंट का पता लगा लेते हैं तो ये पूरी कायनात जो नजर आ रही है, हमको इससे आइडिया लगता है कि कोई न कोई इसको जरूर बनाया है। जब मेंगनी से ऊंट तक पहुंच सकते हैं तो कायनात से हम रब्बे दुल जलाल तक भी पहुंच सकते हैं। तो एक जरिया क्या होता है कि इस दुनिया, इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है कि तुम अगर मुझे देखना चाहते हो, मुझे मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो वो ये नहीं कहता है कि तुम बहुत ज्यादा रोजा नमाज कर लोगे तो मेरे बारे में समझ में आ जाएगा। उसने दो ही चीज को पूरे कुरान में जिक्र किया है कि दो काम करोगे तो हम समझ में आ जाएंगे। तो उसने क्या कहा? सनोरीहिम फी आयातिना, सनोरीहिम एक आयत है कि मैं तुमको दिखलाऊंगा इस पूरी कायनात में अपनी निशानियां, वहां से तुम पकड़ लोगे। दूसरा क्या बताया? पूरी कायनात देखेंगे आप, समझ में आ जाएगा कि हाँ ये अल्लाह है, उसने बनाया है। ये जो है इस्लाम में सबसे पहले जो तौहीद रखी गई वो यही है, क्योंकि इन चीजों से अल्लाह ताला समझ में आ जाता है। और दूसरी चीज अल्लाह ताला ने कहा है वफी अनफुसिकुम, कि आप अपने बारे में गौर कर ले कि ये एक गोश्त का लुफड़ा है, जबान भी गोश्त का लुफड़ा है जी। लेकिन जबान पर कोई चीज रखते ही माइक्रो सेकंड में जबान बताती है बहुत तीखा है, बहुत मीठा है, एक सेकंड में बताती है। हाथ भी गोश्त का एक टुकड़ा है, इस पर दिन भर रखे रहो तो ये नहीं बताएगा कि शक्कर है बहुत मीठी है। तो अल्लाह ताला कहता है अपने बारे में आप गौर करेंगे तो मैं समझ में आ जाऊंगा। इस कायनात को देखेंगे तो एक जरिया क्या है कि ये है। आखिरी चीज इसमें क्या है कि जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जब इस पैदाइश से पहले की, यानी आदम एक तो पैदा हुए जब ओरिजिनल पैदा हुए, एक अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो हम सबको पैदा किया, सबको पैदा किया, सारी कायनात। कुरान कहता है अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबसे पूछा। हदीस में आता है कि लोग चींटियों के मानिंद आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं थे, चींटियों के माने जो लोग भी दुनिया में कयामत तक पैदा होने वाले थे। सबसे अल्लाह ने पूछा अच्छा बताओ मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब बोले हाँ आप हमारे रब है। वो जो आपसे वादा लिया है वो इस दुनिया में आपको जरूर काम आता है। काम आता से बुरा क्या है कि आपको उस वादे की वजह से आपके दिल में वो एक मतलब जरूर खटक पैदा होती है गलत काम करने वालों को कि मैं गलती कर रहा हूं। ये पांचवा, क्या गलती कर रहा हूं? आप समझते हैं, हजारों मरतबा ये सवाल दिमाग में आता है कि एक बच्चा गैर मुस्लिम क्या पैदा हुआ, उसकी क्या गलती है? उन्हें एप्लीकेशन देके पैदा हुआ है सीताराम के यहाँ? नहीं, अपने आप पैदा हुआ है। अब उसको क्यों जहन्नम में डाला जाएगा? भाई वो तो सीताराम क्या पैदा हुआ है। ये सारी चीजें सीताराम को जो बताया ऊपर, आखिरी चीज ये है कि अल्लाह उसके दिल में जरूर कभी न कभी डालता है कि भैया जो तुम कर रहे हो ये गलत है। इसीलिए अगर कोई बच्चा बालिग होने से पहले कोई आदमी जब मर जाता है तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा, चाहे वो सीताराम के यहाँ घर पैदा हो चाहे जॉन क्या पैदा हुआ हो। बालिग होने से पहले मरा तो मतलब क्या है कि अभी इसकी मैच्योरनेस ने वो तमाम इल्म सीखने के जराए पर कुदरत हासिल नहीं की है। ज्यादा उसके बारे में अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि ये जहन्नम, इसके बारे में फैसला होगा क़यामत पे क्या होगा, लेकिन ये जहन्नम में नहीं जा सकता है क्योंकि ये नाइंसाफी है कि एक आदमी, आप अब्दुल्ला के यहाँ पैदा हुए हैं, वजह भाई आपको अल्लाह ने पैदा कर दिया है, आपको एप्लीकेशन दे करके मुसलमान के नहीं पैदा हुए, वो सीताराम के यहाँ जो पैदा हुआ एप्लीकेशन, तो उसके दिल में जिंदगी में मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जितने भी दुनिया में इस्लाम को न मानने वाले लोग पैदाइश के बाद नहीं, पैदाइश में से जो पैदा ही हुए हैं गैर इस्लाम में, उनके दिल में जरूर से जरूर ये बात आती है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ये गलत है।
एक मरतबा, कम से कम हजारों मरतबा, लाखों मरतबा आ जाए अलग बात, मिनिमम एक मरतबा उनके दिल में ये जरूर बात आती है कि मैं जो कर रहा हूं गलत है। उस दिन से वो नंबर, वो काफिर होते हैं और उनकी उम्र होती है एक दिन। नहीं समझे बात? 40 साल में ये बात समझ में आई कि मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, ये 40 साल से कोई बहस नहीं है। यहां से आपका डे 1 शुमार हुआ, आपका पहला दिन आज से शुमार हुआ कि आप अब काफिर हुए और आपकी उम्र कितनी है? एक दिन। अब इसके बाद आपने कुफ्र को चूज किया, कुफ्र को अख्तियार किया, यहां से मामला बिगड़ा। तो ये 5 जरियाए हैं कि ताकत के जरिए, दावत के जरिए। यहां पे दोनों का जिक्र कर दी। यहां पे जो जिक्र किया गया कि अल्लाह हर हाल में उनके दिलों में बात डालेगा, उनके घरों तक इस्लाम कच्चे पक्के सब में पहुंचेगा, जिल्लत के साथ अगर कबूल करेगा, मजबूर होकर के कबूल करेगा। कबूल करने से बुरा क्या है? मातहती ऑफ इस्लाम, इस्लाम के मातहत हो जाएगा, और या ये इज्जत के साथ इस्लाम को कबूल करेगा। लेकिन इस्लाम पहुंचना सबको। अब आप देखिए, आज ये नेट के जरिए हम बहुत सी चीज नेट में नहीं देखना चाहते हैं, उसके बावजूद जैसे ही आपने नेट खोला पता चला है कि एडवर्टाइज आ रही है, आपने उसको कहा है मुझे एडवर्टाइज भेजो? नहीं। ऐसे ही अभी तो आपके सामने मौजूद है, ऐसे ही जमाना बढ़ते बढ़ते कि जैसे ही आप नेट पर जाएंगे, जैसे ही आप टीवी पे जाएंगे, वैसे ही इस्लाम का चर्चा शुरू होगा। आप चाहें या ना चाहें, ये दाखिल जो होने की बात कही दे रही, आप चाहें या ना चाहें, आपके घर में, आपके दिल में, आपकी जात पर इस्लाम दाखिल हो जाएगा अपने आप। ना कबूल करने की वजह आपकी अपनी शरारत है। बात समझा रही है? लिहाजा अगर आप इसको इस अंदाज में देखना चाहें कि तरक्की दुनिया इस्लाम की तबलीग का बेहतरीन जरिया है और वो अल्लाह ताला कर रहा है। ये सारी तरक्की की बुनियाद तुम जो भी कहो, मेरी समझ से कि इस्लाम की जो ने शर्त रखी है कि इस्लाम जब तक आप नहीं लाएंगे जन्नत में नहीं जाएंगे, वो अपनी शर्त को रब्बे दुल जलाल फुलफिल करने के लिए, ताकि तुम्हारा हमारा एक्सक्यूज उद्र कयामत पे खत्म हो जाए। ये बात इस हदीस से बयान करना चाहते हैं कि सबके घर में इस्लाम दाखिल होगा, और वो इस्लाम जो है दाखिल होने के बाद इज्जत से मानोगे तो ठीक है, जिल्लत से मानोगे तो भी ठीक है, लेकिन मानना जरूर आपको है कि इस्लाम एक दीन है और सच्चा दीन है। कबूल करना, कबूल करो, ऐसा बात है। ये बातें आपके सामने रखना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।